Hello, good morning students. Welcome to e-learning. Today we are going to start with our lecture 15 here. The topic is total revenue, average revenue and marginal revenue under perfect competition market. Now, what does the perfect competition means? See, perfect competition market, there is a whole chapter behind, that is the next chapter, that is chapter 6. But still, we are going to learn today in this particular a few points about perfect competition, and we get to know what happens under perfect competition about the total revenue, marginal revenue and average revenue. So let's quickly start with the particular topic, that is total revenue, average revenue and marginal revenue under perfect competition market. So here you find that what does a perfect competition means. Perfect competition market is a market where firms accepts the market price and sell it कमोडिटी. मतलब एक ऐसा मार्केट है, परफेक्चुअली देखा जाए तो परफेक्ट मार्केट को क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वर्चुअल मार्केट. व्हाट डज अ वर्चुअल मार्केट मीन्स? बिकॉज इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट एक ही जगह पे आपको मिलता है, वो भी है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में. नाउ व्हाई इट इज़ बीन फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर? बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू नो देर आर डिफरेंट characteristics of perfect market. So few we are discussing here and it will give a better idea. Like in perfect competition market, commodities are homogeneous. What does a homogeneous word means? Homogeneous means same type of goods are available, same type of we can say identical products are available. So there are large number of buyers and sellers for it. Now when I talked about agriculture sector, what happens in agriculture sector? All the crops, all the grains, all the vegetables which you find which are identical, yes, so they are homogeneous. Suppose it is a wheat, so wheat, a person who is growing wheat, so in a farm there is a wheat only, not other things which is being grown. So when you find that, if you compare the, if you take the grains in your hands of the wheat, what happens? You can see it is a similar type of things which you find, means similar type of grains are available in your hand, so it is homogeneous. Clear? Same way it is with, same with rice, same with different we can say barley or different things. So you find that different food grains are there. If it has been grown by the farmer, it has been sold by the farmer, so it is a homogeneous product. So there is a large number of buyers and sellers for this, yes, because it is a basic thing, basic necessary things. हमको खाने के लिए ये सब food grains चाहिए, we eat wheat and everything. So you find that wheat, rice is a common thing and it is having a big large market in a society. So buyers and sellers have complete knowledge, yes. सब buyers को भी पता है कि sellers को भी पता है कि ये wheat है कि rice है कि ये कौन सा grain है. So you find that they have the perfect knowledge about this market situation. Price is determined by demand and supply. We have seen कि प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में से जो पॉइंट आता है उसके अंदर से हम we try to decide that what is the, at what particular price the demand and supply becomes equal, that is a price which has been placed by it. So ये हम situation देखते हैं demand and supply of the product से. So we know that price determination of the how it has been done for any commodity. Firm sells the commodity on that price only. No firm can affect the price. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, एक तो हमारे पास प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, मतलब मेरे अगर सपोज देयर आर 10 फार्मर्स, दो 10 फार्मर्स आर ग्रोइंग wheat, so all of them are having wheat and there are different, you find that different farmers are there, but they all are selling what? Wheat. They have grown wheat and now they are selling wheat. Now what is happening up ultimately, suppose if you or I am going with the market for purchasing wheat, if one person's prices, we know that, we already know, उसको भी पता है ये wheat है, मेरे को भी वो पता है ये wheat है, he cannot cheat us. Again we know what is the market price for that particular wheat. Suppose it is, for example we can say 20 rupees. So 20 rupees per kg wheat is there, तो वो हमको cheat नहीं कर सकते 24 या 25 या 30 के हिसाब से. Clear? So that particular thing is telling here, it has been telling in perfect competition the price is not influenced or not changed by the, we can say, any seller. कोई भी सेलर यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं कर सकता. जो उन लोग का प्राइस डिटरमाइन होगा वही प्राइस पे वो सेल आउट होगा एवरीवेयर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, बिकॉज देयर गुड्स आर व्हाट, देयर आर होमोजीनियस. और दूसरी चीज़ यहाँ पे बायर्स एंड सेलर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर. मतलब एक अगर बोलेगा कि मैं ज़्यादा प्राइस में बेचूंगा, तो देयर आर लॉट मैनी पर्सनस हु आर, दे आर रेडी टू सेल एट द नॉमिनल प्राइस, और वी कैन से जो प्राइस डिटरमाइन किया है वो प्राइस पे. सो एक पर्सन यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर, इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे कि एक पर्सन अगर चाहे तो वो ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहे तो वो नहीं बेच सकता इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्लियर?
सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल? बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करता ज़्यादातर आपको देखेगा फार्मिंग और वी कैन से एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट स्टिल देर आर मैनी प्रॉब्लम्स अंडर इट. सो यू फाइंड दैट perfect competition is a virtual or an ideal competitive market where you find that there are large number of buyers and sellers, the products are identical or we can say homogeneous, and then after you find that the price has been determined on the basis of demand and supply of a commodity, and the firm sells that particular commodity on that particular price only. No one firm or two firm or group of firm can affect the price of that particular product. तो इतना समझ आया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है. नाउ परफेक्ट कंपटीशन एक सिंपल मार्केट जहाँ पे फार्मर्स अपने क्रॉप सेल कर रहे हैं और बायर्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है वो सेम है हर जगह. अगर ये सेलर के पास जाओ कि दूसरे सेलर के पास जाओ या कोई से भी सेलर्स के पास जाओ, इफ दे आर सेलिंग द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, द प्राइस रिमेन्स द सेम. सो दिस इज व्हाट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज ऑल अबाउट. नाउ therefore, तो यहाँ पे ultimately the point comes that is the price is fixed and constant. The price is not changing and it is fixed by the price determination of on the basis of demand and supply of the product. Now in perfect competition, अगर यही चीज़ हमको टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू को करना है, तो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मार्केट प्राइस दैट इज द सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू आवर एवरेज रेवेन्यू. क्योंकि जो कंज्यूमर के लिए मार्केट प्राइस है तो वो वी कैन से सेलर के लिए रेवेन्यू है. सो इट इज़ एन एवरेज रेवेन्यू एंड दैट इज़ अगेन अ मार्जिनल रेवेन्यू. क्यों मार्जिन? बिकॉज मार्जिन रेवेन्यू का मतलब एक और एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करना था. तो यहाँ पे सर अभी सभी यूनिट सोल्ड करें एक ही प्राइस पे, तो एक्स्ट्रा यूनिट भी सोल्ड होगा सेम प्राइस पे. देर इज़ अ नो चेंज विच वी फाइंड. सो एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑल्सो इज सोल्ड विद अ फिक्स प्राइस बिकॉज द प्राइस इज फिक्स एंड कॉन्स्टेंट. सो हियर वी फाइंड दैट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन our market price equals to average revenue equals to marginal revenue. So let's see what happens again. If a price of a commodity is 50, मतलब एक चीज़ ले लो जिसकी प्राइस है 50 रुपीज़, एंड देन द मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज ऑल्सो 50 रुपीज़. नाउ सो व्हाट इज हैपनिंग? अब एक तो मार्केट प्राइस 50 है, उसका कंपनी को इनकम होगा वो 50 के हिसाब से ही होगा, और एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करो वो भी 50 में ही सोल्ड होगा, नो कम नो ज़्यादा पैसे में सोल्ड होगा. तो अल्टीमेटली 50 इज एवरेज रेवेन्यू, 50 इज द प्राइस एंड 50 इज द मार्जिनल रेवेन्यू. देयरफॉर द फर्म ऑफ द रेवेन्यू, द फर्म एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू कर्व्स आर द सेम. मतलब फर्म के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये एक सेल करे, उन लोग का 10 सेल हो या 100 यूनिट्स 100 kgs ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड हो, नो मैटर वॉट यू फाइंड दैट द इट विल गो विद द सेम लाइन. यस, सो जितना भी डिमांड मीन्स वी कैन से जितना भी यूनिट सोल्ड होगा वो सेम प्राइस पे सोल्ड होगा. तो इट शोज अस व्हाट, नथिंग. वी कैन से इट इज हैविंग अ सेम रेवेन्यू और सेम मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू विच इज बीन अर्न. सो इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. यस, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट हो गया, तो याद करो हम डिमांड में अगर प्राइस कांस्टेंट है तो क्या होता था, इट इज़ पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस. सो वी कैन सी बाय द डी कर्व विच इज़ ड्रॉन हॉरिजॉन्टल टू, मतलब ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि वो जो एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है, नहीं तो प्राइस है, वो किसके साथ मैच कर रहा है, बिकॉज डिमांड और वी कैन से यूनिट्स आर मेजर ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसके साथ मैच होगा. नो मैटर व्हाट इज द डिमांड, कितने भी डिमांड हो, 1 हो 10 हो या 100 हो, हमारा प्राइस फिक्स है, कांस्टेंट रहेगा. सो इन द डायग्राम रेवेन्यू कर्व of the firm shows we can see 3 things in it. हम 3 चीज़ देखेंगे, लेकिन but before that I will show you the diagram here. On the x axis you find that unit sold is there. On the y axis revenue is, that is in rupees. Here there is no data is given, that's why we have not written any of the number here, but we are just pointing out with the differential. Now what is happening अब, जितना भी हमारा जो प्राइस रखा है that is here D, it is 50 suppose. सो ये 50 रुपीज़ यहाँ पे जितने भी डिमांड हो, सपोज 10, 20, 30, 40, 50, नो मैटर व्हाट इज़ द डिमांड, दिस प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. सो वी कैन से आवर प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. सो हियर इट इज़ व्हाट इट इज़ बीन शोन, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू आवर प्राइस वेयर द गुड्स इज बीन सोल्ड, बिकॉज द प्राइस इज फिक्स. 50 रुपये भाव है तो 50 रुपये में सोल्ड होगा, नो मैटर व्हाट इट इज़ बीन डन. सो ये चीज़ है यहाँ पे.
अगेन व्हाट यू फाइंड दिस इज shows you the total revenue मतलब जितने भी यूनिट्स सोल्ड, सपोज 100 kgs आर देयर, 100 kgs इंटू 50, सो 5000. सो यहाँ पे जब यहाँ पे 5000 रीच होगा तो यहाँ पे दिखाएगा 100 यूनिट्स पे 5000. सो इट्स एन इमेजिनरी वन, इसलिए यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे. तो एक सिंपल थिंग है कि जैसे जैसे हमारा गुड्स सोल्ड होगा, द मोर द क्वांटिटी द मोर विल बी द रेवेन्यू विच इज़ बीन अर्न, बिकॉज वी नो टोटल रेवेन्यू इज व्हाट यूनिट पर kg इंटू total number of units sold, नहीं तो price per kg into we can say total units sold. So ultimately there we find that if there is a change in total number, you find total number of units sold, it will change our total revenue. So यहाँ पे वही चीज़ है कि constant है, price constant है, लेकिन यूनिट जितने भी सोल्ड होंगे उतना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होते जाएगा. So it increases with the increasing units sold. Now again, first point what he says, in perfect competition market the firm's marginal revenue and average revenue is constant and same. यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई AR equals to MR equals to P. क्यों? क्योंकि 50 रुपीज़ इज़ अ प्राइस, 50 रुपीज़ इज़ एवरेज रेवेन्यू एंड 50 रुपीज़ इज़ अ मार्जिन. कहाँ पे लिखा है सर? यहाँ ऊपर लिखा है. सी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 50, देन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज 50 ओनली. यहाँ पे ओनली लिखा है, पढ़ो. तो हमारा ये टाइम बचेगा यहाँ पे कि इट इज़ पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस एंड इट इज़ इक्वल ऑलवेज, all three of them are equal. Now average revenue is constant and same, due to that it can be shown through a one line curve that is on DD. So यहाँ पे हमको ये DD नाम दे दिया और वो लाइन से हम पता कर सकते हैं कि हमारा प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू आर सेम. नाउ अगेन, so we can say average revenue equals to margin revenue. Again, second factor is average revenue and margin revenue curve is parallel to x-axis shown by the DD curve here. Average revenue and marginal revenue curve converted into one another. तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, नहीं तो मार्जिन रेवेन्यू, वो एक दूसरे के साथ मैच हो गया, कन्वर्ट हो गया है. क्योंकि एवरेज में क्या आता है, पर यूनिट प्राइस आता है, और मार्जिनल में क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट जो सोल्ड है उसका प्राइस आता है. सो हियर वी कैन सी बोथ आर सेम, तो वो यहाँ पे सेम दिखेगा, एक दूसरे के अंदर आ गया है. हमको नहीं पता चलेगा कि ये मार्जिनल है या एवरेज है, बट इट इज़ द सेम. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वल, दैट इज AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू P. नाउ अगेन फर्दर, टोटल रेवेन्यू कर्व, और वी कैन से राइट टू इंक्रीजिंग अपवर्ड. राइट टू इंक्रीजिंग अपवर्ड क्यों बोला है? सी, यहाँ पे O मतलब ओरिजिन है, यहाँ से ये स्टार्ट होते होते मतलब ये लेफ्ट साइड से जाते जाते राइट साइड पे जा रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ ये कहाँ पे जा रहा है, अपवर्ड. इट इज़ मूविंग अपवर्ड. सो व्हेन इट इज़ मूविंग अपवर्ड वी कैन से इट इज़ इंक्रीजिंग. कैसे इंक्रीजिंग? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंक्रीज हो रहा है, और वैसे वैसे यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब सॉरी नॉट प्राइस, वी कैन से रेवेन्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो व्हेन इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस, यू कैन फाइंड दैट आवर राइट टू इंक्रीजिंग अपवर्ड इज हैपनिंग अप, इज गोइंग कर्व विच इज़ 45 डिग्री एंगल टू इट 0 पॉइंट. मतलब यहाँ से अगर देखें तो ये 45 है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जितना यूनिट सोल्ड होगा उतना रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जितना यूनिट्स कम सोल्ड होगा उतना रेवेन्यू कम होगा. बट यहाँ पे इंक्रीज की ही बात की गई है, तो हम यहाँ पे इंक्रीज ही दिखाएंगे. सो अल्टीमेटली द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज हियर, सो इट विल इंक्रीज आवर टोटल रेवेन्यू, एंड इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस. इट इज़ फ्रॉम द ओरिजिन, इट फॉर्म्स व्हाट, 45 डिग्री एंगल. 45 डिग्री एंगल यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट पे बनेगा, नहीं तो वी कैन से हियर ओरिजिन पॉइंट ऑफ O वहाँ पे बनेगा. सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस. अगेन दिस कर्व इंडिकेट्स दैट द सेल ऑफ गुड इंक्रीजेज द टोटल रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीजेज एट इक्वल रेट. मतलब जितना हमारा टोटल रेवेन्यू, जितना प्रोडक्शन सोल्ड होगा उतना ही हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा. तो वो इक्वल रेट, बिकॉज क्योंकि प्राइस कॉन्स्टेंट है. When price is constant, it increases with an equal rate, and that's why it has been divided into half. That's why यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है. So therefore the slope of total revenue curve is positive. एक तो पॉजिटिव क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, and it is equal proportion, मतलब ये दोनों को अच्छे से equal proportion में बांट दिया है. So we can say here the total revenue, marginal revenue, and the price of a product which has been fixed earlier, it is constant here, and it shows it is parallel to your x-axis. Second, we can say we cannot able to identify either it is an average revenue or margin, because it has been both converted into one another. यहाँ पे दोनों को एक ही बोला गया है. सो हियर वी हैव टू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेम लाइन. ये एक लाइन में हम डिफ्रेंशिएट नहीं किया, एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिन, ये प्राइस है, ये तीनों तीन सेम ही है.
we cannot differentiate. Third one, we find that when as the total number of production is increasing, sale of goods is not production, sale of goods are increasing. जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा एक kg सेल कर रहे हैं 50 के प्राइस से, तो ये हमारा रेवेन्यू 50 से बढ़ रहा है, यहाँ पे एक 10 kg से बढ़ रहा है, तो जितना यहाँ पे बढ़ेगा उतना रेवेन्यू बढ़ेगा. सो इट इज़ ऑलवेज इक्वल प्रपोर्शन. एंड सेकेंड, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स राइट. सो फ्रॉम डाउन टू अप and from left to right, it shows a positive curve, or we can say it shows right to increasing upward going curve, which has been happening in our diagram. I hope you have been clear with all this point. If you have any doubt, any problem, you can just call, message me for this particular topic. It's a very easy concept. Remember the meaning of perfect competition, where you find that is an ideal market or a virtual market where you don't find that where you find that the products are identical, there are large number of buyers and sellers. There you find again nothing but, we can say, the price, they have the perfect knowledge regarding the product, that's why the price remains the constant. Again, the price determination is being done on the basis of demand and supply of that particular commodity. So when price is fixed, it has been constant. Every firm has to follow that particular price and sell the goods. If anyone is influencing matlab if he is changing and according to that he is going with a higher or lower price, no one will accept. Here it is talking only about higher price. If anyone influence with a higher price, no one, because there are large number of sellers. तो एक को छोड़ के दूसरे के पास जाएगा और वो यहाँ पे वो परचेज करेगा. So ultimately it is been attained. Here third one, we can say here it is 45-degree angle which is been formed, because total number increase हो रहा है तो यहाँ पे उतना ही प्रोडक्शन सेल्स हो रहा है, तो हमारा इक्वल प्रपोर्शन में हो रहा है. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, यू कैन जस्ट कॉल और मैसेज मी. ठीक है.